How will you prove it? ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? ये टू आइडेंटिकल प्रिज्म, एक जैसे आइडेंटिकल प्रिज्म, टू आइडेंटिकल प्रिज्म। अब क्या करें? From a very small hole in a cardboard, allow sunlight to pass, to come out, and allow it to fall on a prism. I'll pass the light. First, take out the light from a small, slit, very small hole. यहाँ से light आ रही है, sunlight. ठीक है? Light should be allowed for a small, very small hole. Light should be allowed to pass from the very small hole, and then it should fall on prism, one of the prism. Then after passing through the prism, it should be allowed to fall on the screen. So we will observe कि जो light prism से निकलती है, तो ये उल्टा होता है। ये बेसिकली इसको आप भी लिख लो, उसको आज लिख लो, यानी ये रीड प्योर होता है, इस ऑर्डर में होता है। यहाँ पे 7 कलर नजर आएंगे। If you allow the light, very small thin ray of light, very single ray of light coming out from the small hole, and allow it to fall on prism, and after passing through the prism, if you allow that sunlight to fall on a screen, है ना? So we will find 7 different colors on the screen. Did 7. This order में the lowest will be violet and the upper one will be, topmost will be red. वजह कि तीनों जो लाइट के लिए 7 कलर हैं, इसमें जो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, थोड़ी हल्का सा आपस में फर्क है। तो रेड लाइट की स्पीड जो है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ, और इसकी वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ कम है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा बैंड करती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम। तो ये ज़्यादा बैंड करेगी, इससे थोड़ा कम बैंड इंडिगो करेगी, ब्लू करेगी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे कम बैंड कौन सी करती है? रेड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू करती है। तो इसलिए सबसे नीचे कौन सा कलर नजर आएगा? वायलेट, और सबसे ऊपर कौन सा नजर आएगा? रेड नजर आएगा। बात समझ में आ गई? तो हमें 7 कलर नजर आते हैं। तो फर्स्ट पास द लाइट आफ्टर स्मॉल, क्या नाम है, थिन, you can say, from a small hole, allow the light to pass, come out, and then it should be allowed to fall on prism, and after passing to the prism, it should fall on, allow it to fall on screen. You will get 7 different colors. ठीक है? Now what should we do? उसके बाद हम क्या करेंगे? Remove the screen and put the second prism. Put the second prism. So we have taken 2 identical prisms. Second prism very close to the first prism, and the light should pass. The 7 color of light should be allowed to pass from the second prism. Then the 7 color of light allow them to pass through the second prism, and after passing through the second prism, they should fall on the screen. तो you will find क्या स्क्रीन पे क्या नजर आएगा? A white spot. क्या? जो कि वो जो 7 कलर थे, this light here when they join together, mix together, they will again form white light. When they क्या बोलते हैं? break up into 7 colors, then we got क्या नाम है? 7 colors on the screen, and when they are again joined, we again got a white light. इसको कहते हैं dispersion of light. क्या? What is dispersion of light? The process of splitting the light into its constituent colors, into its
अब 7 लाइट 7 कलर, जो सनलाइट है 7 कलर से बनी है, इसमें 7 कलर आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई लाइट ऐसी है जो 3 कलर से बनी है या 4 कलर से बनी है, जब वो स्प्लिट होगी डिस्पर्शन की वजह से, तो वो जितने कलर से बनी उतनी कलर नजर आएंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग है लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म, दैट इज नोन एज क्या, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो सनलाइट में हमने क्या करा, ये हाउ वी प्रूव दैट सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर, वी हैव टेकन 2 आइडेंटिकल स्प्लिट prisms. First we allow the light to fall from the first to come out. I allowed it to pass through the first prism, and then it is allowed to fall on a screen. Now what we find here, 7 different colors. Then after we remove the screen and put the second screen, what we call it, prism very close to the first prism, in such a way that their surfaces should be parallel to each other. Their surfaces should be second prism upside down. Their surfaces should be parallel to each other and allow the 7 colors of light to pass through the second prism. And then again they are allowed to fall on the screen after passing through the second prism. So what we will find on second prism? On the screen we will get single color white light. तो इससे क्या होगा कि लाइट इज मेड ऑफ, सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। ये सनलाइट के बारे में है। अगर कोई लाइट हम 3-4 डिफरेंट लाइट के कलर को मिक्स करके एक सिंगल कलर में कर दें, तो जब डिस्पर्शन होगा तो वो उतने ही कलर में ब्रेक होगी जितने कलर में वो बनी है। तो डेफिनेशन क्या है डिस्पर्शन की? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आएगा कि हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमें बारिश के बाद डे टाइम में जब सूरज निकल रहा होता है तो आफ्टर रेन वी फाइंड 7 कलर रेनबो नजर आती है। क्या रेनबो? व्हाई वी गेट रेनबो? रेनबो क्यों नजर आती है? आफ्टर रेन the droplets of water droplets remain suspended in air. Water droplets remain suspended in air. Large number of water droplets. The sunlight जो होती है वो इन droplets में से पास होती है। ठीक है, जब वो इन droplets से पास होती है तो एक होता है प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल डिफरेंट ये प्रोसेस होता है। लाइट किसी मीडियम में अंदर घुसी और बजाय बाहर आने के ट्रांसपेरेंट मीडियम का, वो सारी की सारी लाइट जो थी वो उसी मीडियम में वापस चली गई। तो उसको क्या बोलते हैं? When the light comes back to the same medium after अंदर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर सारी वापस आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्यों होता है? दैट यू विल लर्न इन हायर क्लास। बट बहुत सी जगहों पे लाइट किसी एक मीडियम में एंटर करी और अंदर से वो दूसरी बाहर निकलने की जगह, दूसरे मीडियम वापस आने की जगह, एमर्ज आउट होने की जगह तो दूसरी सरफेस से टोटली वापस हो जाती है। इसकी वजह से कभी कभी किसी खास एंगल के ऊपर हम गिलास को पकड़ा हो, है ना, उसमें पानी हो थोड़ा सा और गिलास को पकड़ा हो लाइट के सामने और हम उससे घुमाएं तो उसी एक पर्टिकुलर एंगल पर हमें लगता है गिलास जो है वो बहुत चमक रहा है, वो बहुत चमक रहा है किसी खास एंगल के ऊपर, क्योंकि अंदर से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर सारी बाहर आएगी। तो वो यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी तो लाइट का जो हिस्सा है वो ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स और एयर होती है उसके अंदर भी होता है। कभी कभी जो लाइट ड्रॉपलेट के अंदर एंटर होती है तो वो अंदर एंटर होने के बाद डायग्राम उसको हम थोड़ा करिए, लाइट इधर से आ रही है। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, अब ये इधर से बाहर निकल गई। प्रोसेस क्या बोलते हैं? टोटल। दिस इज सिमिलर टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। हम इसको डिस्पर्शन वी डोंट से इट वर्क लाइक ए प्रिज्म, तो गलत ले आएगा। प्रिज्म में जो लाइट जो होती है वो अलग हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट वेवलेंथ। जब वो प्रिज्म के अंदर जाते हैं तो डिफरेंट कलर जो लाइट के होते हैं
उनकी स्पीड अलग अलग है, तो कोई ज़्यादा बेंड होता है और कोई कम बेंड होता है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम बेंड होता है, जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा बेंड होता है। और फिर ये यहाँ से एवर्ज आउट हो जाती है। बात समझ में आया? यहाँ क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो अंदर जा रही है कहाँ पर, वाटर ड्रॉपलेट, और वाटर ड्रॉपलेट के अंदर टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है उसकी बजाय एमर्ज आउट होने की। जब वो अंदर आई वो टोटली रिफ्लेक्ट हो गई। इस प्रोसेस में जो कलर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो 7 कलर्स थे ये सेम पोजीशन से नहीं निकलते, ये थोड़ी डिफरेंट पोजीशन से निकलते। तो हजारों लाखों जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट जो होता है कि हमें क्या नजर आता है, रेनबो की शक्ल में नजर आता है। क्योंकि these colors in this process when they come out after total general reflection, they do not come out at the same position from the same place. They are slightly, क्या बात बोला मैंने, slightly separated from each other. लेकिन थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, तो एक दूसरे से अलग होने की वजह से वो अलग अलग नजर आते हैं during this process. तो ये जो टोटल जनरल रिफ्लेक्शन है ये वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है, और इसकी वजह से हमें सनलाइट जो होता है रेनबो के बारिश के बाद दिन में, रोज डे टाइम में बारिश के बाद हमें क्या नजर आता है, रेनबो, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट। The 7 colors are separated due to reflection by water droplets. वो कलर अलग अलग होने से अलग, थोड़े से अलग हो गए तो हमें 7 कलर्स नजर आते हैं, और वो दूर से हमें रेनबो की शक्ल नजर आती है। ये बात समझना है। इसकी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। राइट ऊपर से आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी कलर, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट हो तो वेरी माइन्यूट डिफरेंस होता है, हम यहाँ नहीं दिखा सकते। यहाँ तो हम उसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सेम लाइट, एक लाइट आ रही है वहाँ पर, लेकिन में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। और फिर ये दूसरे लाइट दूसरे ड्रॉपलेट से पास होते हैं वहाँ और ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से पास होते हैं वहाँ। ये सारे वाटर ड्रॉपलेट हवा में सस्पेंडेड है और वो सब एक के बाद एक है। तो वो जो लाइट पास होती है वो एक ड्रॉपलेट से पास नहीं होती, वो बहुत सारी ड्रॉपलेट से पास होती है, तो उनमें सेपरेशन बढ़ता है। और नीचे में जब हम देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि वो 7 अलग अलग कलर के हैं, और वो उनको रेनबो की शक्ल में कहते हैं। It is due to splitting of light, sunlight passing through the water droplets, and this splitting takes place due to total general reflection by the water droplets. ठीक है, आगे आपको मैंने दिया क्या, अगला सवाल क्या था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ bending of the light rays that is passing from enter from one medium to another। जो लाइट रे बेंड होती है तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। आप समझ लो ध्यान से, एटमॉस्फेयर के अंदर रेज आती है बाहर से, कहाँ से, एटमॉस्फेयर के बाहर से। तो एटमॉस्फेयर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ये जो एटमॉस्फेयर से पास होती हैं, सुन लीजिए ध्यान से। तो एटमॉस्फेयर इज अ डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वैक्यूम, एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर से होती है तो रिफ्रैक्शन होता है, यानी वो अपनी एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं आती बल्कि थोड़ी बेंड कर जाती है। किधर बेंड करेगी, एज कंपेयर टू टुवर्ड्स, जो कि जब डेंसर में आती है तो नॉर्मली तरह बेंड करती है। अब कोई होता क्या है कि when these rays reaches to our eyes, तो ये बहुत सारे रिफ्रैक्शन के बाद आती है। हर एटमॉस्फेयर की हर लेयर अलग तरह से मिल काम कर रही है। सुन लीजिए ध्यान से, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बदल जाए किसी लेयर का, या कंपोजिशन बदल जाए, तो इट विल बिहेव एज अ सेपरेट मीडियम। मतलब एक लेयर है उसका टेम्परेचर अलग है, दूसरी उसके मिलियन एडजेसेंट लेयर उसका टेम्परेचर अलग है, या कंपोजिशन अलग है। तो वो जो रे आएगी यहाँ से एंटर करेगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। जब वो दूसरी लेयर में एंटर करेगी सेकंड लेयर में, तो इट इज अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वो स्ट्रेट मूव करती है। एज लॉन्ग एज मीडियम इज नॉट चेंजिंग, लाइट विल मूव स्ट्रेट। लाइट का अपना रास्ता चेंज करके रिफ्रैक्शन कब होता है, जब मीडियम चेंज होता है।
तो ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं दे एक्ट एज ए डिफरेंट मीडियम, आइदर ड्यू टू चेंज इन डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर और डिफरेंस इन टेम्परेचर और ड्यू टू डिफरेंस इन कंपोजिशन। तो हम इसको बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो होती हैं इनकी कंपोजिशन और टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, कॉन्टिन्यूसली एटमॉस्फेरिक लेयर्स ही चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। ये नहीं कि हम थोड़ी कुछ देर सेम रहेगा फिर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। एक सेकंड पहले जो कंपोजिशन की टेम्परेचर एक सेकंड बाद कुछ और होगा, उसके एक सेकंड बाद कुछ और होगा। तो एवरी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिहेव एज ए डिफरेंट मीडियम। तो when the ray of light passes through these layers, it continuously refracts, sometimes towards the normal, sometimes क्योंकि जो आगे जो लेयर्स आ रही हैं वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेयर वो रिफ्रैक्ट उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वो ऑप्टिकली रेयर होगी, दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो ऑप्टिकली डेंसर होगी, दे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो जो आती है वो कभी नॉर्मल की तरफ नॉर्मल से दूर ऐसे वो कंटिन्यूसली बेंड होती हुई आती है। द रेज ऑफ light passing through the atmospheric layers continuously bend from their path, sometimes towards normal, sometimes away from the normal. This process is known as atmospheric refraction. और ये याद रखिएगा कि the layers of light, the layers of air are continuously changing their temperature and composition. As a result, each layer behave like a separate unit. ठीक है? यही वजह हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नजर आती है। ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है कि स्टार कभी ज़्यादा चमकता है कभी कम चमकता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द स्टार अपीयर्स टू बी मोर ब्राइट एंड देन इट अपीयर्स टू बी लेस ब्राइट कंटिन्यूअसली, द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार कंटिन्यूअसली चेंज, देन समटाइम्स मोर समटाइम्स लेस। इसको बोलते हैं क्या? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। मतलब ब्राइटनेस ऑफ स्टार कंटिन्यूअसली चेंज, कभी ज़्यादा ब्राइट कभी कम। अब ये होता क्यों है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो लाइट फाइनल लाइट जो हमारे आँख तक जा रही है, अंदर जा रही है, हमारे जो हमारे हमें स्टार दिखा रही है, वो कभी उसकी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाती है, समटाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस एंड समटाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब होगी कैसे होगा कि जो लाइट स्टार से आ रही है, अब वो जो लाइट थी सारी की सारी आँख के अंदर एंटर होगी, इस पोजिशन पे है। कभी कभी होता है कि वो आँख के अंदर पूरी लाइट दाखिल होती है, कब दाखिल होती है। तो क्या होता है कि लाइट की इंटेंसिटी जो आँख में जा रही है वो कभी बढ़ेगी, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो यू विल फाइंड क्या ब्राइटनेस विल इंक्रीज, और इंटेंसिटी कम होगी तो स्टार की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो इसका मेन रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये बात समझ में आ गई? इंटेंसिटी डिक्रीज intensity of the light entering into the eye continuously due to atmospheric refraction। उसकी वजह से कभी स्टार appears to be sometimes it appears to be more bright and sometimes it appears to be less bright। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? twinkling of star। अच्छा, अब होता क्या है कि जो मून है वो या जो क्या नाम है प्लैनेट्स हैं वो नहीं ट्विंकल करते, मून भी ट्विंकल नहीं करता। मून को आप देखें तो उसमें कभी ज़्यादा चमक कभी कम चमक, ऐसा नहीं होगा कभी ज़्यादा चमक रहा हो कभी से नेक्स्ट सेकंड तो कम चमक रहा है। क्यों? वाई मून डज नॉट ट्विंकल और द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? क्या नहीं, इसकी वजह बड़ा सिंपल सा है। मून देखिए स्टार जो है इट इज पॉइंट सोर्स व्हिच इज वेरी फार अवे फ्रॉम हियर। मून तो बहुत करीब है, प्लैनेट्स भी बहुत करीब है। तो स्टार जो नियरेस्ट स्टार है कौन सा है? अर्थ के नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन है। और जो बाकी स्टार हैं वो बहुत दूर है, मून से हजारों गुना ज़्यादा उनका डिस्टेंस है। तो दे बिहेव लाइक इज पॉइंट सोर्स, बट द प्लैनेट्स एंड मून दे आर नॉट पॉइंट सोर्स, दे आर एनलार्ज सोर्स। क्या होता है? थोड़ा बड़े साइज। इफ from a particular side, from a particular क्या नाम है part of the sun या of the moon or planet, light enters into the eye. Due to atmospheric refraction, this light changes its direction and does not enter.
लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई, वो आग की आंख में एंटर होने की जगह आंख से बाहर निकल गई। लेकिन एट द सेम टाइम the same amount of light enter from the other part of the planet या मान लीजिए 100 रेज की लाइट आग के अंदर जा रही थी, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से 100 में से 40 जो की डायरेक्शन बदल गई, वो आग में नहीं जा रही। सर कितनी जा रही है? 60 जा रही है। लेकिन दूसरे हिस्से से जो पहले रेज नहीं जा रही थी, तो अब वो जाने लगी। The amount of light rays entering into the eye remain same। लेकिन पहले एक हिस्से से लाइट की कुछ रेज अंदर गए आँख के, कुछ नहीं गई, और दूसरे हिस्से की कुछ रेज गई और कुछ नहीं गई। जब बेंडिंग होगी तो जितनी पहले ज़्यादा रेज जा रही थी एक हिस्से की कम हो गई, लेकिन दूसरे हिस्से की लाइट रेज जितनी कम हुई थी उतनी है उसके बराबर थोड़ी ज़्यादा वो दूसरे हिस्से से पूरी हो जाती है। तो अमाउंट ऑफ लाइट रेज एंटरिंग इनटू द आई रिमेन ऑलमोस्ट सेम। मतलब अगर 40 रेज का डायरेक्शन बदल गई, आँख से दूर हो गई, दे आर नॉट एंटरिंग इनटू द आई बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आउट ऑफ 100 और 60 लाइट में जा रही है, तो दूसरे हिस्से की जो लाइट रेज थी जो पहले नहीं जा रही थी, दे स्टार्ट एंटरिंग, क्योंकि बेंडिंग होगी तो वो भी इधर को बेंड करेगी। तो द लाइट रेज which were not entering into the eye earlier, that light goes on, some of those light rays entering into the eye start entering into the eye. As a result, the net light rays entering into the eye remain almost same. So भी हैं, अब भी कितनी एंटर कर रही है? So the amount of light rays do not change. Therefore, वो आपका जो मून है, तो लाइट रे entering into the eye remain same almost. तो इसलिए मून हमें क्या नजर नहीं आता, ट्विंकलिंग करता हुआ नजर नहीं आता, स्टार्स भी ट्विंकल नहीं करते, सॉरी planets भी ट्विंकल, क्योंकि they are very close to the sun, to the earth, and since they are very close to the earth, they are not taken as a point source of light, they are taken as a extended source of light, they are large source of light, extended source of light को हम लेते हैं कि ऐसा सोर्स जिसमें जो पॉइंट सोर्स होगा उसमें से बहुत कम लाइट रेज मानी गई, पॉइंट सोर्स की ओनली 1 or 2 लाइट रेज, ये एज्यूम करते हैं कि वहाँ से एक लाइट रे आ रही है, एक पॉइंट एक लाइट रे आ रही है, थोड़ी सी आ रही है, लेकिन एक्सटेंडेड सोर्स से लाइट रेज ज़्यादा आ रही है। जब ज़्यादा रेज आ रही है तो सम ऑफ द रोज रेज आर नॉट एंटरिंग इनटू द आई फ्रॉम वन पार्ट, द रेज कमिंग फ्रॉम वन पार्ट डू नॉट एंटर इनटू द आई ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, बट द अदर रेज व्हिच वर नॉट एंटरिंग अर्लियर दे एंटर इनटू द आई, वो पहले नहीं एंटर कर रही थी, वो रिफ्रैक्शन से कुछ रेज बाहर हो गई, नई रेज आ गई उसकी जगह, तो ऑलमोस्ट अमाउंट ऑफ लाइट रेज एंटरिंग टू द आई रिमेन सेम। ड्यू टू दिस रीजन द ब्राइटनेस ऑफ द मून और द ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट डज नॉट चेंज, इसलिए हम उसमें ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई। इस बात अगला सवाल है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें हम स्पेस से बाहर निकल जाए तो आसमान जो है वो क्या नजर आता है? डार्क नजर आता है। जो कि डे टाइम में जो लाइट हमारे कमरे में आती है हम तक आ रही है, वो रिफ्रेक्ट वो और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी क्या है 10 पार्टिकल हैं, वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं ऑल डायरेक्शन, सम ऑफ दोज लाइट रीचेस टू आवर रूम आल्सो, और पूरी जगह लाइट फैल जाती है। तो डे टाइम में because of the scattering of sunlight rays by whom? By dust particles present in the atmosphere, the whole atmosphere become illuminated, पूरा atmosphere जो है वो illuminate होता है, ठीक है। अब वो जो लाइट सब जगह फैल रही थी, स्कैटर हो रही थी, जब स्पेस में पहुंच जाते हैं तो dust particles are not present here, तो जो लाइट की स्कैटरिंग है जो चारों तरफ जा रही है, स्कैटरिंग लाइट इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शन, when there will be no atmosphere क्या वो नहीं होगा, क्या 10 पार्टिकल नहीं होंगे, तो रिफ्लेक्ट तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल नॉट टेक प्लेस, जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल नॉट टेक प्लेस तो जो लाइट विच इज गोइंग टू ऑल डायरेक्शंस, तो क्या ये एटमॉस्फेयर के अंदर है तो लाइट इधर से भी स्कैटर होकर आ रही है, इधर से भी आ रही है, सामने से भी आ रही है, तो हमें चारों तरफ लाइट नजर आती है। लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर के बाहर चले गए वहाँ क्या होगा? 10 particles are not present, and since the therefore scattering of light does not take place, the light will not scatter in all in different directions.
and it will not reach to our eyes. तो हमें क्या नजर आएगा? There is no scattering of light and the light is not reaching to our eyes. तो इसका मतलब लाइट की वजह से तो हमें रोशनी नजर आ रहा था, illuminated. जब लाइट नहीं पहुंचेगी तो it will appear to be dark. वजह समझ में आ गई? Why we see the atmosphere dark? जो एस्ट्रोनॉट्स को डार्क क्यों नजर आता है? Because the atmosphere, dust particles are not present in the outside the atmosphere. Therefore, no scattering of light takes place, and since no scattering of light takes place, the light does not reach to the observer, which was reaching to from all directions to the astronaut when they were inside the atmosphere. That does not reach to the astronaut. As a result, क्या होता है? The sky appears to be dark. अच्छा होता है क्या? The sun है. अब वन सन जो है उससे डायरेक्ट रे जो हमारी आँख तक आ रही है वो तो आएगी, सन नजर आएगा, लेकिन जो वो लाइट स्कैटर नहीं हो रही तो चारों तरफ का हिस्सा नजर नहीं, जो चारों तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते, वो भी लाइट हम तक आती तो हमें चारों तरफ इल्यूमिनेशन नजर आता, लेकिन वहाँ पे कोई पार्टिकल है नहीं, ओनली सन लाइट विच इज रीचिंग डायरेक्टली टू आवर आई, तो हमें सबको नजर आएगा, लेकिन स्कैटरिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस, देयरफॉर उसका अराउंड उसके जो सराउंडिंग है वो क्या नजर आएगा? हमें ब्लैक नजर आएगा, डार्क नजर आएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर दोपहर के हमें एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हुए जमीन के ऊपर से एटमॉस्फेयर नीला क्यों नजर आता है? वाई एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू बी ब्लू? इसमें समझ लीजिए कि अमंग द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट जो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है वो लो वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर होती है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा वो वेवलेंथ की जिसका वेवलेंथ सबसे कम है विजिबल लाइट के अंदर, वो कौन सी है? वायलेट विजिबल है ना, सबसे कम किसकी है? वायलेट और ब्लू, ये इनकी कम उसमें आते हैं, विजिबल में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी वेवलेंथ कम है, दे स्कैटर मोर। अब वो स्कैटर होती है, दे स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस, तो हमारे पास जो लाइट आती है चारों तरफ से वो स्कैटर्ड लाइट आती है जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्कैटर कर रहे हैं। वो कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर कर रहे हैं? ब्लू लाइट स्कैटर कर रहे हैं। तो अब तक जो हमारी आँख तक जो लाइट आती है वो कौन सी लाइट आती है? ब्लू लाइट होती है जो आँख तक आ रही है चारों तरफ से स्कैटर होकर, तो हमें स्काई जब नजर आता है ब्लू नजर आता है। बात समझ में आ गई? दोपहर के टाइम पे हमें सूरज जो है वो वाइट नजर आता है, क्यों? बिल्कुल 12 बजे करीब, एट अबाउट 12 noon द सन इज वेरी क्लोज टू द अर्थ, डिस्टेंस कम होता है, तो मोस्ट ऑफ द कलर ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट वो एटमॉस्फेयर से पास होकर मोस्ट ऑफ दिस कलर्स ऑफ लाइट रीचेस टू आवर आईज, तो व्हेन ऑल द कलर्स ऑफ लाइट रीचेस टू आवर आईज तो सन कैसा नजर आएगा? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ लाइट इज दैट सन अपीयर्स टू बी व्हाइट। सन सेट और सन राइज के टाइम पर the sun is a very far distance, very far point, तो वहाँ से जो लाइट चलती है सन से तो बहुत दूर है, तो इन बिटवीन द स्मॉलर और शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो वेवलेंथ क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है, और जो सबसे कम स्कैटर होती है वो हम तक पहुँचती है, वो सबसे कम स्कैटर कौन सी लाइट होती है? वो रेड लाइट होती है। अभी बताया मैंने आपको कि स्कैटरिंग जिनकी वेवलेंथ कम है उनकी ज़्यादा होती है, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम होती है। सबसे कम स्कैटरिंग कौन सी लाइट की होती है? रेड की। तो जो बहुत दूर से with the sun is near the horizon at the end, one side of sunrise, it is very far away. The light coming from the sun, most of the light rays which are smaller wavelength, they scatter in different directions. वो scatter होती है, that light which is not scattering that reaches to our eyes. वो कौन सी लाइट है? Red light. Usually at the time of sunset and sun rise, since red light is reaching to our eyes, therefore sun appears to be red. At the time of sunset also, and at the time of sunrise. White clear हो गया? इसी में ये भी होता है कि सन जो है वो होराइजन से ऊपर आए तो नजर आना चाहिए। होराइजन मतलब हमारे यहाँ की सीट में जो प्लेन सरफेस है वहाँ तक अगर सन उसको ऊपर आए तो नजर आना चाहिए, लेकिन अगर सन उस तो हमारी आँख की सीट में जो लास्ट पॉइंट है उससे नीचे चला जाए तो हमें नजर, लेकिन हमें 2 मिनट पहले सनराइज नजर आता है, यानी सन स्टार्ट विजिबल 2 minutes अर्लियर बिफोर कमिंग अबव होराइजन।
होराइजन से ऊपर आने के बाद नजर आना चाहिए, लेकिन ऊपर आने से पहले 2 मिनट पहले नजर आने लगता है। और डूबना होराइजन से नीचे चले आए तो नजर आना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन 2 मिनट बाद तक नजर आता है। जैसे मैंने ये है, ये पेन जो है ये इसके नीचे आ गया, आपको नजर नहीं आएगा, मान लीजिए एंड पॉइंट कब नजर आएगा, जब हम इसकी सरफेस से ऊपर आएंगे। लेकिन नीचे जाने के बाद भी 2 मिनट देर तक सूरज नजर आता है तकरीबन अप्रोक्सीमेट, और 2 मिनट पहले नजर आने लगता है जबकि अभी तक ऊपर को नहीं आया। ऑल दिस रीजन इज ड्यू टू atmospheric rotation. The light rays coming from the sun, when they enter into the atmosphere, due to refraction, they bend towards the earth. But the rays which are not supposed to come to our eyes directly, they enter into the upper layer of the atmosphere, where refraction takes place. और refraction से वो ray सीधी जा रही थी, अब तक नहीं आ रही थी, वो due to refraction they bend towards the earth, और वहाँ कहाँ पहुँच जाती है वो ऑब्जर्वर की आँख तक बैंड होकर पहुँच जाती है। तो वो अगर सीधी जाती तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन क्योंकि वो बैंड होकर आँख तक आ रही है तो जो ऑब्जर्वर है उसकी सूरत क्या होगा, नजर आने लगेगा। 2 मिनट अर्लियर, कितने मिनट पहले, 2 मिनट पहले बिफोर कमिंग टू द राइट। Similarly, after going below horizon, sun should not be visible, but some of the light rays coming from the sun enter into the upper layer of the atmosphere, and those layers refract towards the earth and reaches to the observer eyes. When they reaches to the observer eyes, sun remain visible. How long? 2 minutes, even after sunset. This is all. What are the reason? Atmospheric refraction से वो light which was not supposed to reach to our eyes, it should go straight, but due to refraction by the atmosphere, the rays bend towards the observer, towards the atmosphere, towards the earth, towards the surface of the earth, and reaches to the observer's eye. क्योंकि तो अर्थ की सरफेस पे है ना, तो वो ऑब्जर्व अर्थ की तरफ बैठ होती है और आँख तक पहुँच जाती है, तो जिसकी आँखों को उसको नजर आने लगे। दिस इज द कॉज। तो दिस आर द वेरियस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें मेन वन ऑफ द रीजन है। अच्छा, क्विकली इनका रीजन समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूअसली changing due to change in temperature and due to change in composition. तो ये continuously change हो रहा है। इसलिए रिफ्रैक्शन अगर चेंज नहीं होता तो एक डायरेक्ट रिफ्रैक्शन भी लाइट रेज भी बार बार बेंड नहीं होती। Because refraction is continuously changing, as a result, the bending of light ray is continuously changing. So sometimes more light will enter into the eye, and sometimes less. Bending की वजह से कुछ बाहर चले गए, कुछ अंदर आ गए। मून क्यों नहीं नजर आता ट्रेवलिंग करते हुए? क्या चीज़ है? Enlarged extended source of light, enlarged source of light. So light rays coming from the moon are very large in number. So if some of the rays do not reach to the eye because of refraction, the rays coming from other part will reach to the eye. Number of rays reaching to entering to the eye remain almost same. इसलिए हमें मून जो है वो इंक्रीज करता नजर नहीं आता। I hope you will understand this.